Thank you everyone for joining on a Sunday afternoon at 11 a.m. for the Democracy Samvad, a weekly webinar that Indian School of Democracy hosts every Sunday. Today I'm glad to have with me Rajni Bakshi Didi with us. I'll share more about her. I'll briefly share about what we do at Indian School of Democracy. Our core work is how can we nurture principled grassroots political leaders. And I think a lot of our inspiration comes from the topic that we are going to talk about today. Like our larger aspiration is how to be inspired by 21st century Sabarmati Ashram, how to be become like that and have the principles of compassion, non-violence in our future young political leaders. So briefly sharing about our speaker today with us, Rajnidhi has been a prolific Gandhian writer, a journalist, and she's written in both Hindi, English, and I think I'm sure other mediums as well. But I think one thing for me, which I think very closely connected, and we recently had a long conversation when I was sharing about Indian School of Democracy, was that her understanding of the idea why it is important to have non-violence as the central pillar of politics, and I think her overall belief in young people that it is our generation that will bring a difference. I think that was very, very powerful, very encouraging for us. To begin, maybe, ma'am, we can begin with briefly you share about your journey and why you arrived at this point of it, and then I'll ask more about today's topic, which is non-violence and politics. Yeah. So, namaste sabhiko, all greetings to all, and thank you so much, Prakhar and friends, for inviting me. It's a big honor. So, very briefly, I think some of you may know I've been a journalist for almost, well, no, actually, it's exactly 40 years now. I started my first job in 1980. And very early in my journalism, I was drawn to grassroots movements and grassroots politics. And by the mid 80s, I can't really now explain to you how it happened. I knew it was really an instinctive thing. I really can't say that it was, some great intellectual work or insight. It became very clear to me that if there is any one minimum thing that my generation must do, and I meant by generation, my peer group, who am I to speak for my generation? But me and my friends, and I was lucky to be part of a very wonderful community of activist friends, that we must pass on the words of Gandhi, the spirit of Gandhi. Even if we are not able to, make great strides in that sphere, we will try, but let us at least, at the very least, the in the search that Gandhiji represents, the experimental energy that he represents, and that experimental energy is driven by the search for multiple truths in changing situations. This is a very important point. That truth, of course, there is lies and truth. It is just now day outside. So if I say it is night, there's no multiple truth about that. It is night somewhere else just now. But in real life and, in everyday conflicts, the reason why we have conflicts is that it's like that classical elephant, Gandhiji's elephant. I assume everybody knows that story, right? That 10 people were sent into a room blindfolded, and there was an elephant, and they had to touch some one surface and tell what it was. All of them said it's a different thing because all of them touched different parts of the elephant. All of them were right. All of them were speaking their truth. So this really has been the biggest inspiration for me, and I have been very, very blessed to have the company and the comradeship of amazing peers, all of whom pretty much have done amazing work in their own spheres. So maybe, is this a good beginning, or should I talk about Ahimsa conversations here? You can. I think I'll come back to that also. Okay. That's a very important part of what you do. Yeah, we'll build up to that. Sure, sure. We've written many books around Gandhiji, around Ahimsa, and I think one book I will want to come back to is Bazar's Conversation in Freedom, in which I think it's also about freedom, but also about today's system. And I think
today when I see politics and when I engage with politics, I see in current form, in contemporary form, politics and violence have become very close. And when I talk about violence, I don't just mean the physical violence, but multiple forms of violence. And I think I would want you to share briefly about how do you see violence in multiple forms, because often हिंसा शब्द आते ही हमारे दिमाग में आता है शारीरिक हिंसा या फिजिकल हिंसा, किसी को मार देना, बट हिंसा शायद शुरू बहुत पहले होती है. शारीरिक हिंसा शायद कई बार अंत तो नहीं होता है, उसका एक बड़ा पड़ाव होता है. So how do you see violence as a whole? Maybe. Yeah. ये बहुत should I speak in Hindi and English both? I think it will be good to, because the audience is mixed जरूर, in English, जरूर. तो अभी वैसे mix रखूंगा. Okay. So see, you have covered the basic areas that violence is multidimensional, but we must be very careful in how we understand or in our mind visualize non-violence, because if we think that absolute absence of any kind of violence is non-violence, then it is unattainable. Because see, even a vegetarian is eating the plant, which is a living thing. It may not be a sentient being. It is not a moving, talking being in the way that a cow or a goat or a chicken is. But it is a living organism. It's not a rock. Yeah. So all life subsists on life. And therefore, when the lion pounces on and eats the hiran, वो जब शेर हिरन को खाता है, तो उसको हम violence नहीं मानते, क्योंकि वो शेर का भी जिंदा रहने का हक है और वो ही उसका खाना है. Violence is, I think we should be very clear, violence is when we knowingly or unknowingly do injury to someone mentally, physically, structurally, which was avoidable. That truth, all of them were right. All of them were speaking their truth. Prakhar, my voice is playing back. No, that's okay. I should continue. Okay. Yeah. So this is a very important thing, that we should not define non-violence in such exaggerated and purist terms that it becomes an unattainable goal. Now, the hard truth, the main thing that we have to examine is violence the more natural to human beings or non-violence? This is a very long-standing controversy. In Gandhiji's time, the scientific community, both in social sciences and natural sciences, was arguing that no, human beings are fundamentally violent. And in fact, there was something known as the killer ape theory. This was the theory that it is those ancestors, from the ape to Homo sapien or sapien sapien, which is what we are, those apes became us, who were more aggressive, who were more easily able to be violent, both in terms of their willingness to hurt other creatures, but also their cleverness in how they did it. Now that theory has been pretty much discredited. And this is after Gandhiji. In the last 50, 70 years, there has been a range of multidisciplinary research, which is showing that on the contrary, cooperation, mutuality, our ability for compassion, for caring, has played a much greater role in the evolution of our species. So I'll end by just sharing a story that, again, some people may have heard because it gets quoted very often. Margaret Mead, the famous anthropologist, was once asked that, what do you think is the first artifact of civilization? And the person asking the question thought she will say the wheel or, some stone tool or something. Instead, she said it is a particular bone fragment, skeleton. They're one of the oldest skeletons that they have found. She says, I think that is the beginning of civilization. Why? Because she says that in that skeleton, the femur
which is the, I hope I'm saying the right word. It's the bone that runs, it's the longest bone in the body. It's the bone that runs from the knee to the hip. It had broken and it had healed. And that person had gone on to live. Okay. And now she says, this means that somebody was caring for this person. Because when we were only a herd, when we were like not different from the, the herds of elephants or bison or whatever, if you fell, if you were injured, that was it. Nobody stopped for you. Yeah. So in other words, the idea that civilization begins when we started stopping for those who fell. जब हम पीड़ित और जख्मी घायल इंसान के लिए हम रुक कर उसकी देखभाल करने लगे, तब से हमारी ये सभ्यता और संस्कृति की जर्नी शुरू होती है. Collectivization started basically. मान लो कि even before that, we don't know, we cannot know because this is too far back. So but it is possible, Prakhar, that even when we were living in small groups, see, because all life in the earliest stages, before we discover that these grasses can be grown, and from them we get a grain that feeds us, that is very nourishing. Yeah. Before that, we all had to hunt. Yeah. So even if it was that small group in which we were a hunting group and not a very large collective, just the act of caring for someone would be very ancient. This is what Gandhiji means when he says that non-violence is as old as the hills. Can you share a little bit brief more from like historical perspective of ahimsa and politics, and then maybe share a little bit about the contemporary? How do you see the current realities? Right. So let's first start with the Indian subcontinent. The Sanskrit term ahimsa paramo dharma is again quite familiar to most people. I'm yet to be very clear because there are many views on when it originates, but it is definitely there from after the Mahabharata. So when people say to us, "Arey, what is this? It's a meaningless phrase. This is the land of the Mahabharata." Well, maybe it's the Mahabharata that taught us this. Because that on one thing there is no ambiguity, that the central message of the Mahabharata is this is what happens when you let the afflictive emotions run away with you. The afflictive emotions is a Buddhist term, but its origins are much older than even the Buddha, right? Greed, jealousy, hatred, anger, and covetousness, मतलब ये दूसरे की चीज मैं हड़प लूं, ये जो प्रवृत्ति होती है, इन सब को हमने पीड़ित प्रवृत्तियां माना है. हमारे बहुत पहले, मतलब हजारों सालों से पूर्वजों को ये मालूम था कि, और वो not because there is some abstract moral frame, because there's a bodily connection. हर इंसान जानता है भाई, जब आपको बहुत मतलब काबू से बाहर वाला गुस्सा आता है, आपका शरीर अनकंफर्टेबल हो जाता है ना. आपकी हार्ट बीट रेस करने लगती है, आपके शरीर में एक बड़ी अजीब सी वो बेचैनी होती है. एंड उसका ऑपोजिट जो है वो तो और भी ज्यादा फेमिलियर है कि जब हम खुश होते हैं, जब हम किसी के किए हुए एक्शन पे भी हम जब खासकर खुश होते हैं, कि किसी ने हमारे प्रति जब कोई बहुत सहानुभूति दिखाई, दोस्ती जताई, प्रेम दिखाया, तो जो हमारे शरीर में सुख की संवेदनाएं होती हैं वो हम जानते हैं. सो its biology and ethics have actually been very closely connected. ये बड़ा modern idea है कि ethics is an imposition by some pandit log and some moral elite, etc.
Very powerful and beautiful quote. Biology and ethics are closely connected. Yeah. Yeah, yeah. Yeah. और देखो ना, that is why otherwise आप देखो प्रखर, in nature how could our species have survived? सारे mammals में से हमारा ह्यूमन बच्चा सबसे ज्यादा हेल्पलेस है. हम सब रोज देखते हैं ना, आगे पीछे हमारे कुत्ते बिल्लियां बच्चे पैदा करते हैं. Within 4-5 days अगर वो बच्चा अपनी माँ से सेपरेट हो जाए तो वो जिंदा रह लेता है. ह्यूमन बच्चा मिनिमम उसको 2-2.5 साल की बहुत क्लोज फीडिंग एंड प्रोटेक्शन चाहिए. प्रोटेक्शन मतलब फ्रॉम सांप से, शेर से, भेड़िए से. सो इट वाज ए बायोलॉजिकल इम्पेरेटिव कि अगर हम ये सब क्वालिटीज को ना कल्टीवेट करते तो हम सरवाइव ही ना करते. टुडे देयर वुड बी नो all this that we are doing just now. Yeah. So maybe coming to our topic more closer, non-violence in politics. I think Mao famously said that the quote that you shared, political power grows out of a barrel of a gun. Flows from the barrel of a gun. Yeah, flows from a barrel of a gun. And I think that I think is often that has also become a truth of contemporary politics at some level. How do you see it? And I think you also have a alternate thought to this. Maybe you can share your screen and show everyone, all the viewers over here. I will. I'll do that in a second. Sure. Please drop your questions. Everyone who is listening, please drop your questions. And I know because I've been meeting a lot of young people who want to get into politics. और पहला सवाल ये आता है कि आप बातें तो ये सब कर रहे हैं अहिंसा की, सर्वोदय की, राजनीति की, पर जब हम बाहर जाते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं, तो वहां तो बात ही कुछ और है. तो अपने जो भी सवाल जाइए, आज हमारे बीच में रजनी दी हैं और उनका एक बड़ा अनुभव है इसके साथ में, तो उनसे हम सवाल पूछ सकते हैं. मुझे नहीं पता कि उनके पास भी एग्जैक्ट जवाब होगा, जवाब शायद हमें ढूंढने पड़ेंगे, बट हमें एक रास्ता दिख सकता है. तो प्लीज अपने क्वेश्चंस लिखिए, जो भी आपको लगता है राजनीति और अहिंसा के बारे में, तो हम आगे उनको और लेंगे. हम पहले 20 मिनट और मैं सवाल पूछूंगा, उसके बाद फिर हम आप लोगों के सवाल लेना शुरू करेंगे. तो पॉलिटिकल आई एम सॉरी प्रखर, वो अगेन वही तुम्हें मैं पहले कह रही थी ना, टेक चैलेंज हूं, तो वो स्क्रीन शेयर तो शायद संभव नहीं होगा. दैट पेज हैज डिसअपीयर्ड व्हिच आई हैड सेव्ड, बट आई विल रीड इट आउट फ्रॉम द प्रिंट वर्जन. सी, पहली बात तो ये है कि एक बड़ा एलिमेंट्री फिजिकल सत्य है कि मान लो आप और मैं अगर अहिंसा की वो हूँ, प्रीचर हूँ, I'm trying to propagate non-violence and I'm trying to persuade you, you may or may not be persuaded. Okay, but if I am a terrorist and I pull the trigger of a gun, whoever is standing in front of that gun is going to die. There's no doubt about that. So the impact of one versus the other is at one level so stark, the difference is so stark that many people think that of course the gun is more powerful. ठीक है, but is that really what moves human societies? सवाल तो ये है ना. For example, let's look at something even more basic. Ever since our ancestors learned how to make fire by rubbing stones, we have had a choice that we could use that fire to cook meat and eat it. Again, a very big step in the civilizational process. Or we could go and burn down the next village. Yeah, the option has always existed. The reason why Mao's statement, though physically and in a very limited way accurate, is wrong in practice, it is also is invalid in practice, because it is not power that flows from the barrel of a gun. It is only obedience. This is the great insight of Hannah Arendt. She was a great political philosopher, and in many ways और शेयर करेंगे इसके बारे में. मतलब मुझे मैं बता रही हूं. It's a powerful thing that you have said just now, obedience.
पर इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, क्योंकि ओबीडियंस को शायद बहुत हाई वैल्यू भी दी जाती है हमारे समाज में, स्पेशली अगर हम ईस्टर्न उसमें देखें. नहीं, in this case what she means, so Hannah Arendt was a I think German born, right? She must have been German because she was Jewish and she had to escape to America. That's how she was able to survive, otherwise she would have been killed in the Holocaust. So she lived through a terrible, you know, time, and I'm sure many of her friends and relatives didn't make it. They may have perished in the Nazi concentration camps. So what here, let me read to you what she is saying. But actually, no, that is more about the causes of violence. We'll go into that later. But her point is that actual power is what Gandhi is still exercising over us. And I'm giving this as an example. It is not limited to Gandhi. Or let's put it another way. What your favorite musician? That is real power, ना कि आप बार बार उसके गाने गा रहे हो, उसकी पोएम्स को याद कर रहे हो, बिकॉज कोई कनेक्शन बैठा. एंड वो जो मेरे नीचे लाउड स्पीकर लगा के जबरदस्ती मुझे सुना रहा है, वो मेरे कानों को असॉल्ट तो कर रहा है, बट इट्स नॉट पावर, दैट इज फोर्स. सो Hannah Arendt's great insight is that she, in a very minute way, and we don't have time today, and quite honestly, I think I'm not an adequate scholar of Hannah also to be able to explain to you in very minute detail. We could do it on another occasion with enough time. That there is a difference between force and power also. That's a powerful thing for me to see. There's a very stark difference between the two. And you know, let's bring it down again to something very basic. I don't know if all of you have ever been told this when you were in school. I was very fortunate. In my school, high school, the principal always said, if it's not self-discipline, it's not discipline. If you are following a rule only because you think I'm watching from the window and I will put you in detention, then that's not worth it. It's only worth it when you're following the rule because you see the wisdom behind it and you do that. You follow it voluntarily. Just as we would not dash through a red signal of a traffic light, because we understand that red पे stop and green पे go हमारे भले के लिए किया गया है, ताकि हम intersections पे गाड़ियां crash होके लोगों को मारती ना रहें. That is shared power. We have come to an agreement on a certain shared logic of this, that it's good if it works this way. And I'm sorry, I'm bringing it deliberately down to very, very mundane things, but because I think and I hope that helps to clarify the matter, rather than staying at some very abstract level. And obedience, what I think Hannah means there is, it's not that you're a good son so you obey your father or you adopt his moral framework. ये वो वाली obedience नहीं है. This is that which is done to us when the opposite of it is that I will get stabbed or I will get shot or I will get put in prison. Conformity, maybe today we want to use the word conformity. Conformity, yeah. When I am forced to conform, then that is not, I'm not responding to power, I'm only responding to force. And societies and their political structures decay and die when it is reduced to that. Such a powerful insight, and I think very well put also. मैं वापस से I think उस सवाल पे जाऊंगा कि उस सवाल से ज्यादा I think जो मैंने भी पढ़ा अपनी आजादी की लड़ाई के बारे में या इस अहिंसा के बारे में, और जो अपने मूवमेंट्स भी हुए, गांधीयन मूवमेंट्स, उसमें एक चीज होती थी कि गांधी जी हैं या जो कांग्रेस के या उस टाइम के जो भी बड़े लीडर्स हैं,
वो तो तभी एक लेवल पे थे, शायद उनके साथ फिजिकल हिंसा उतनी नहीं होती थी, लेकिन जब भी कोई नॉन वायलेंट एक मूवमेंट हुआ है ऐतिहासिक तौर पे अक्रॉस द वर्ल्ड, चाहे वो किंग का हो या वो मंडेला जी का हुआ या साउथ अफ्रीका में या कहीं पे भी हुआ है, बहुत सारे लोग उसमें हिंसा का शिकार हुए हैं। तो शायद लीडर के लिए तो रिलेटिवली एक से फिजिकल हिंसा का शिकार रिलेटिवली नहीं होते हैं, बट सैकड़ों लोग उस हिंसा के शिकार में होते हैं। तो कैसे देखा जाए आज के टाइम पे, बिकॉज लीडर्स तो कहीं ना कहीं जो पहुंच जाता है वो भी उस रास्ते से ही पहुंचे होंगे हिंसा के, बट एक बार पहुंचने के बाद हम मासेस को कैसे समझाएं, कैसे वो बात आए कि कुछ को तो अभी भी हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है, उसको आप कैसे देखती हैं उस पूरे प्रक्रिया को? यहाँ पर आप ऐसे शारीरिक गोली बंदूक वाली हिंसा की बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चरल हिंसा की? मैं शारीरिक की ज्यादा बात कर रहा हूँ इस टाइम पे। जैसे अगर गांधी मूवी में एक सीन है, जब नमक वाला जो चल रहा था सॉल्ट सत्याग्रह, तो वो एक सीन आता है जिसमें वो फैक्ट्री के बाहर बारी बारी करके सरोजनी नायडू जी के साथ में लोग खड़े हैं और वो मार पड़ रही है। गांधी जी को तो चल उठा के जेल में डाल दिया, तो वो तो तब भी एक लेवल पे फिजिकली सेफ है, मेंटल स्ट्रेंथ के हिसाब से चलेगा। बट जो सैकड़ों लोगों को मार पिट रही है, बहुत लोग मर गए उस हिंसा में, उसको कैसे देखते हैं आप? I'm not sure I fully understand your question, because in this case, of course, eventually Gandhi pays the biggest price of all. Not on that day and not on maybe 1942 also, but उन्होंने eventually तो उन्होंने अपनी जान ही दे दी ना। और वो ये जो वहां आपको उस सीन में दिखाया जाता है, उस किस्म की घटना मे बी लेस इंटेंस साउथ अफ्रीका में तो उनके साथ हो चुकी होती है। बहुत बार, हाँ। यस, फिजिकली इनफैक्ट उसी फिल्म में एक सीन दिखाते हैं कि शुरू वो में कस्तूरबा उनको पट्टियां बांध रही हैं। तो या देखो, ये एक जब कोई इंसान किसी मूवमेंट में जाता है तो ये, और खासकर जब वो नॉन वायलेंट मूवमेंट में जाता है, तो ये तो एक मतलब इवेंचुअलिटी, ये एक संभावना है जिसको वो मान के ही उसको चलना पड़ता है। अगर आप, हमने जो अरुणा रॉय के साथ जो अहिंसा कॉन्वर्सेशन की है, तो उसमें वो बहुत अच्छी तरह से बोलती हैं कि भाई जब हम लोग पुलिस की लाठियों के सामने खड़े होते हैं बिल्कुल निहत्थे और बिल्कुल शांतिपूर्वक हम पुलिस का सामना करते हैं, तो हम जानते हैं कि भाई हमारी जान भी जा सकती है अगर अब ये लाठियां हम पे बरसाने लगे। और वो एक लकड़ी की लाठी भी अगर आपको इनफ फोर्स से गलत जगह पे आपकी खोपड़ी पे अगर लग जाए तो आप मर सकते हैं। तो ये तो तैयारी कैसे की जाए, ये तैयारी कैसे की जाए कि इसके लिए भी तैयार रहे एक पॉलिटिकल वर्कर, या ये जो तो बहुत, राजनीति की बात कर रहे हैं वो तैयारी कैसे की जाए? मुझे लगता है कि सबसे पहला तो सवाल ये है, ये तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट मैं पहले आपको एक इससे और मुश्किल प्रश्न बताना चाहती हूँ, जिसका भी कोई बहुत इजी आंसर नहीं है, कि भाई जब ये लाठियां बरसेंगी तो हम खुद लाठी ना उठा लें, इसकी कैसे तैयारी की जाए? हाँ, जरूर। पहला सवाल तो ये है। अब और अगर आप ये देखें तो ऑलरेडी आई थिंक अहिंसा कॉन्वर्सेशंस में कम से कम 6-7 ऐसे साथी हैं जिन्होंने वो जेपी का नारा उनकी जिंदगी में कैसे आया उसके बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से बात की है। ये नारा था, हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा। और इसकी तैयारी पे तो खैर देखिए बहुत कुछ है कहने को, और आई थिंक हमारे बीच में, वी आर वेरी फॉर्चुनेट इन इंडिया कि हमारे बीच में आज की तारीख में भी ऐसे कई हमारे वेटरन एक्टिविस्ट हैं जिनको धीरे धीरे इस प्रोग्राम में आई एम श्योर आप बुलाएंगे और उनसे इस प्रश्न पे डिटेल में बात होनी चाहिए। I'll just make one observation, which is again I'm very obvious one. अगर आपको अपने से निकलकर, ये जो अपना मैं होता है ना, मुझे चॉकलेट खानी है, मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे आई डोंट नो मुझे नोबेल प्राइज जीतना है, जो भी जो छोटा मैं है, ये जब बड़े किसी लक्ष्य से जुड़ता है तो उसमें जो स्थिरता और जो उसमें
आनंद की प्रवृत्ति पैदा होती है। अगर उस, इफ दैट इज द ट्रैक, नॉट कि आप इस मैं को नेगेट करो, वो तो टॉक्सिक ही होगा। अगर आप इस मैं को उस तरह से मतलब गलत तरीके से मार के आगे बढ़ोगे तो कुछ अच्छा नहीं निकलेगा। लेकिन अगर इस मैं को हम हमारी व्यापक लक्ष्य, एक शेयर्ड कलेक्टिव लक्ष्य, और वो खाली कलेक्टिव या अभी के जिंदा वाले लोगों से नहीं, बट बहुत आगे पीढ़ियों दर पीढ़ी वाले जो विजन होती है ना, हाँ। उससे जब हम जोड़ते हैं तो मुझे लगता है ये इस किस्म की शक्तियां अपने आप पैदा होती हैं। नॉट हमेशा नहीं होंगी, हर इंसान में अलग रूप लेंगी, हर इंसान में उनकी इंटेंसिटी, उनकी गहराई अलग अलग होगी, और इसको हम जज ना करें, इसमें कोई हायरार्की ना बांधे हम, जो कि होती है, मैं जानती हूँ बहुत होती है। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स में तो बड़ी ब्रूटल हायरार्की होती है कि वो कितना ज्यादा कमिटेड है और हम कितने कम कमिटेड हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, मुझे वो बहुत मीनिंगफुल नहीं लगता। बिकॉज हर, देखो नेचर को देखो आप, ये जो पीछे छोटा सा पत्ता है, इसकी कोई कम अहमियत है पूरे जंगल के मुकाबले में? नो, it has intrinsic value which is as profound as the whole forest, because without that one leaf there is no forest. बाबा आमटे जी ने एक बुक लिखी है बीज पे, मधुमक्खियों पे, हाँ. और उन्होंने उस पे काफी बोला है और लिखा भी, आई थिंक और भी कई जगह की मधुमक्खी एक सेंट्रल रोल प्ले करती है पूरे को चला के रखने के लिए, स्पेशली जो छोटे कीटाणु, स्पेशली उन्होंने मधुमक्खी पे ज्यादा लिखा है, बीज प्ले अ सेंट्रल रोल इन द इकोसिस्टम। बिल्कुल, that's always a very powerful metaphor. या बिल्कुल, इसलिए अनिल गुप्ता ने तो एक पूरा इतना, उन्होंने तो अपनी जिंदगी लगा दी ना हनी बी के नाम से। आप anybody who has not looked up the honey bee network, मेरा आग्रह है आपसे कि इस सेशन के तुरंत बाद आप इंटरनेट पे जाइए और अनिल गुप्ता हनी बी नेटवर्क को ढूंढिए गूगल पे। इट्स रियली वर्थ समथिंग, दैट ही इज वन ऑफ द अपकमिंग अहिंसा कॉन्वर्सेशंस। उनसे हमारी बहुत एक्साइटिंग बात हुई है। तो आप थोड़ा सा, आपने एक साल पहले अहिंसा कॉन्वर्सेशन शुरू करी और उसके 45 एपिसोड्स आ चुके हैं। मैं अपने कमेंट्स में फेसबुक लाइव के उसका लिंक शेयर कर दूंगा, जिसको और जाके देखने हैं जरूर से देखिए। उसके पीछे का विचार क्या था, क्यों आया कि अहिंसा कॉन्वर्सेशंस करनी चाहिए और ये वीकली एक वेबिनार शुरू किया जाए, ये कहाँ से आया विचार? तो देखो, एक तो ये कि मेरी जो लाइफ की इन्फ्लुएंसेस हैं उनमें गांधी जी तो है ही, विवेकानंद का भी बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ और मेरे काम को शेप करने में। और उसका एक ये था, उनकी जो मतलब आई थिंक उनकी ये बात ने मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित किया कि जो इंसान जहां खड़ा है उसको जज मत करो, बल्कि ये देखो कि ये यहां से आगे कैसे जा सकता है। टेक अ मैन वेयर ही स्टैंड्स एंड सी हाउ ही मे गो फॉरवर्ड, वो कहते हैं। ओके, तो अब मैंने ये देखा ओवर द इयर्स कि हम अगर गांधी जैसे एक लीडर आएंगे, वो उस स्केल की नॉन वायलेंस की मूवमेंट करेंगे, तब जो है कोई हमें पीड़ा और क्राइसिस से रिलीफ मिलेगी। अगर हम इस तरह सोचते रहेंगे तो बैठे रहेंगे और कुछ नहीं होने वाला। तो ये व्हाई नॉट लुक फॉर व्हाट इज हैपनिंग ऑन डिफरेंट स्केल्स इन डिफरेंट वेज एंड जस्ट कीप टेलिंग दैट स्टोरी। ये मेरा भाव है। और इसको देखो, मैंने एक्चुअली ओरिजिनली मेरे मन में जो प्रश्न आया, दिस इज अबाउट 10 years ago, कि व्हाट इज द स्टोरी ऑफ नॉन वायलेंस आफ्टर गांधी। क्योंकि ये बाजार्स की जो मेरी बुक थी वो एक अलग डोमेन में थी, बट इन एवरीडे लाइफ मैं बहुत
मुझे वो एक क्यूरियोसिटी हुई कि भाई दुनिया भर में सुना है कि लोग अन्य प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, ये क्या है? एंड ग्रेजुअली आई फाउंड कि एक्चुअली ये पिछले 70 साल में, तो ज्यादा हो गया अब, दिस ईयर इट विल बी 71 years, or rather 72 years अभी, now on 30th January, बहुत इनोवेशन हुआ है। दुनिया के कोने कोने में लोगों ने अनेक प्रकार से अहिंसा के प्रयोग किए हैं। नथिंग इज परफेक्ट। अगर कोई परफेक्शन ढूंढ रहा है तो बेशक मत, फिर आप मतलब डोंट बॉदर। लेकिन अगर आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पॉसिबिलिटी, संभावनाओं पे अगर आप रुचि लेना चाहते हैं और उनको देख के कि कैसे ये आगे बढ़ सकती हैं, और कुछ ना हो तो मैं अपनी लाइफ में क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ, अगर ये क्यूरियोसिटी है तो फिर एक जीवन कम है इस सब को देखने के लिए। एंड दैट इज व्हाट गिव मी द आइडिया कि भाई हर हफ्ते एक ऐसे इंसान से बात जो है रिलीज की जाए। मैं लाइव नहीं कर पाती हूँ, दैट समहाउ हैज नॉट वर्कड आउट फॉर मी। दे आर रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशंस, बट माय गोल इज कि हर हफ्ते ऐसी एक कॉन्वर्सेशन को रिलीज किया जाए। और YouTube इसलिए क्योंकि मैं नौजवानों के लिए ये करना चाहती थी, और मुझे किसी ने कहा कि देखिए अब ये प्रिंट विंट जो है ना, ये सब बहुत 19th सेंचुरी सामान है, आपने कुछ अगर हम लोगों से, सब यंगस्टर्स ने मुझे ये कहा, तो आप अपने हमारे इंटरनेट पे कुछ करके दीजिए। तो दैट्स हाउ YouTube। आई थिंक कुछ तो काफी इंटरेस्टिंग है उसमें। सचिन राव जी वाली मैंने देखी थी, तो वो वाली भी काफी अच्छी कॉन्वर्जेशन है, जो कांग्रेस में काम करते हैं। जी जी जी। आज की पॉलिटिकल जो इकोसिस्टम है, अगर उसकी बात करें, स्पेशली अगर हम इलेक्टोरल पॉलिटिकल इकोसिस्टम की बात करें, जहाँ पे चुनाव की राजनीति है, रिप्रेजेंटेशन की राजनीति है, उसमें आप कैसे देखती हैं अहिंसा को? बोथ इन टर्म्स ऑफ, एक तो ये है कि शायद अभी बहुत ही हिंसक लगती है राजनीति, है भी उसको, और कैसे में उसको अगर हमें वापस ले जाना है अहिंसा की तरफ, कंपैशन की तरफ। मतलब मैं अहिंसा के शब्द के साथ अपने आप ही कंपैशन, लव और इन सबको जोड़ के देखता हूँ, है, जुड़ा क्योंकि हुआ ही है। जुड़ा हुआ ही है। तो कैसे देखती हैं वो यात्रा? अभी पे आपकी क्या टिप्पणी है, या कैसे देखती हैं आप? और उसको अगर वापस ले जाना है, उसमें शायद लगेगा 30 साल 40 साल, जो आप बोल रहे हैं जनरेशनल वर्क होता है ये कोई 2 साल 5 साल का काम नहीं है। तो कैसे देखेंगे आप उसको? मैं आपको ना पहले एक कहानी सुनाती हूँ जिससे आपको, टू मेक इट वेरी रियल। तो हमारे एक बहुत प्यारे मित्र हैं विजय प्रताप, वो गांधीयन सोशलिस्ट लोहियाइट रहे हैं, मेरे से काफी बड़े हैं उम्र में, थोड़े बड़े हैं, मतलब हम लोग लोकायन में साथ रहे। लोकायन होता था एक एक्टिविस्ट एकेडमिक्स का प्लेटफॉर्म, और जब ये होगा, आई थिंक 89 में एक इलेक्शन हुआ ना, हाँ आई थिंक 89 के इलेक्शन की बात है। राजमोहन गांधी आई थिंक अमेठी से खड़े हुए थे, और इलेक्शन, विजय उनके वॉलंटियर थे, उनके इलेक्शन कैंपेन में विजय फुल टाइम वर्कर थे। तो पोलिंग डे की बात है कि जिस बूथ पे विजय की ड्यूटी थी उस पे हमला हुआ दूसरी साइड, मतलब मस्ट हैव बीन कांग्रेस के होंगे, आई डोंट नो, अब मुझे ये नहीं याद, पर जो भी है, वन ऑफ द अपोजिंग कैंडिडेट के लोग आ गए और उन्होंने, वहां हाथापाई हो गई, मुक्का मुक्की हो गई, और हमारी मतलब विजय का जो एक साथी था वो गिर गया नीचे, और ये लोग उसको मार रहे थे, वो गिरे हुए लड़के को। तो विजय ने अपना, ही जस्ट थ्रू हिमसेल्फ बॉडीली, मतलब वो उस साथी के ऊपर लेट गया, ये नारा देते हुए कि हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। And Vijay's theory is that they were so stunned, they were so sort of flabbergasted कि ये क्या हो रहा है। they were expecting ना कि ये लोग भी लाठियां निकालेंगे, ये लोग भी मुक्के मारेंगे, that they kicked them out of irritation and frustration, they kicked them a few more times and then they went away. Now मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि हर केस में ऐसा होगा। देखो, I am not delusional, मैं जानती हूँ कि वैसी घटनाएं आज होती हैं और उनमें लोगों की जान भी जाती है।
सो ये एक रियलिटी है जिसका हमें सामना हर वक्त करना पड़ता है, लेकिन उससे ये कहानी इनवैलिडेट नहीं होती। बिल्कुल। एंड हमें हर टाइप के सिचुएशन में हमें अलग अलग उसके मतलब तरीके निकालने पड़ेंगे उसको कैसे जूझने के लिए। लेकिन हम कभी इस बात को अंडर एस्टिमेट ना करें कि जब दूसरा हिम्मत से और निडरता से, आप अगर देखें तो हिंसा कॉन्वर्सेशंस में भी अगर एक रनिंग थीम है तो वो ये है कि if you can find fearlessness within, and it's not easy, but you know, people have moments, then it does become harder for the other side. Now देखो, मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि ह्यूमन बीइंग्स में एक साइकोपैथिक टेंडेंसी भी होती है, वो तो देख ही रहे हैं ना हम, जिस किस्म की अनस्पीकेबल, मतलब जिसका अनिर्वचनीय क्रूरता हमारे समाज में इस समय घटनाएं जैसी घट रही हैं, ये तो हम जानते हैं कि भाई in human beings there is a category that suffers. It's a mental illness category, है ना, of a kind of psychopathic violence, just to out of almost it must be some form of sadism, I think, you know, बिना वजह दूसरे प्राणी को पीड़ा देकर जिसको खुशी मिलती है, अब वो एक मेंटल बीमारी है, वो है एक रियलिटी, लेकिन हम उसको रूल ना मान लें। मैं अब ये उसको आप उम्मीद, आई विल से दिस इज अ होप, आई हैव नो डेटा फॉर दिस, मेरे पास कोई डेटा नहीं है कि कितने लोग किस कैटेगरी में हैं, लेकिन एविडेंस काफी है कि जो बीमार आदमी नहीं है, जो मेंटली इल, वायलेंट पर्सन है पर वो मेंटली इल नहीं है, उसको ये रिफ्यूजल टू फाइट बैक काफी डिस्टर्ब करता है, एंड रिफ्यूजल टू रन, वो यू सी वो आपसे दो चीजें उम्मीद रखता ना कि या तो आप भी बंदूक उठा लोगे या आप भागोगे। जब आप ना भागते हो, ना बंदूक उठाते हो, इट थ्रोज ऑफ द अदर साइड। आपको मैं एक और, आई क्लोज विद द स्टोरी फ्रॉम एन अदर साइड, कंप्लीटली अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड। ये मार्टिन लूथर किंग के रिकॉर्ड्स में आता है कि इन द सिविल राइट्स मूवमेंट एक दिन एक मार्च हो रहा था जिसमें दे वर गोइंग टू सिटी हॉल टू गिव देयर डिमांड्स, और बहुत सारी पुलिस, बड़ी मतलब आर्म्ड पुलिस ने कॉर्डन बना के उनका रास्ता रोका, नॉट दैट दे शुड नॉट एंटर सिटी हॉल। तो ये सब वहां नील कर लिए, घुटनों पे बैठ गए, अपने घुटनों पे आ गए और लाउड प्रेयर कहने लगे। Then after the prayer, one of the representatives got up and he said to the man who was heading the police, see, we love you too, brother. We only want to fight for our rights, which are the true spirit of this American Constitution, and we want to go inside to communicate our message. We appeal to you to not stop us. वो नहीं सुना, उसने ऑर्डर दिया कि इनको फायर होज, वो सॉरी वाटर होज से मारा जाए। But you know, many of the policemen put down their arms. They were in tears, according to witnesses, because this incident has been written about by many people. Many of the policemen were in tears. And then that cordon opened and these people marched into City Hall. Wow. Now, अगर आप डेविड हार्टसो का सुने, वो भी एक, I should have brought the numbers for all these conversations. वो बताता है कि he was a white activist and he was part of this same movement. तो उसमें मूवमेंट में क्या होता था कि people, there were these lunch counter sit-ins, क्योंकि अमेरिका में जैसे हमारे यहाँ ढाबा होता है, वहां लंच काउंटर्स होते थे जहां पे ये था कि only white people will be served. So the civil rights movement activity was कि ब्राउन और ब्लैक पीपल जाते थे और वहां बैठते थे, जबकि उनको पता था कि हमें कोई खाना नहीं सर्व करेगा,
और जो ऑपोजिशन था, मतलब जो व्हाइट रेसिस्ट थे, वो आके इनको नारेबाजी करते थे, धक्के मारते थे। तो ये डेविड के वो कॉन्वर्सेशन में वो बताता है कि एक दिन ये ऐसे एक एक्शन में थे और एक आदमी ने आके उसके यहाँ उसकी हार्ट पे छुरा रखा और कहा कि तुम उठ के चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो डेविड says he had 2 seconds to decide whether he really believes in non-violence, or is there any other way to convince this man. And David said, look brother, you have to do what you think you must, but I will still try to love you. उसके हाथ, उस आदमी के हाथ से चाकू गिर गया और वो वहां से चला गया. I mean, the proof of that is that David is still alive, and at the age of 70 plus, he's giving me this interview. So I don't want to make light of it. देखो, there is a very real danger to life and limb. Let's have no illusions about that. But there is a big and powerful light at the end of the tunnel. That's all I'm saying. जैसे कि पहले भी हमने बात करी कि जो ये अहिंसा है ये बहुत ही व्यापक है, मतलब ये सिर्फ हिंसा है जो बहुत ही व्यापक है, ये सिर्फ एक चीज में नहीं है फिजिकल, या जो हम एग्जांपल्स भी अक्सर हमारे पास आते हैं वो बहुत सारे वो भी होती है कि एक ग्लोरीफाइड स्टोरी होती है जो शायद हम तक आती है. मेरी आवाज आ रही है साहब? Yeah, I can hear you. Go ahead. तो वो जो रास्ता है वो बहुत लंबा है. जैसे अगर हम पॉलिटिकल लीडरशिप की भी बात करें तो उसमें शायद हिंसा के इंसिडेंट होते हैं बहुत सारे वो भी, बट उससे पहले बैकग्राउंड में बहुत कुछ और हो रहा है. अगर हम एक महिला के लिए बात करें तो इकोसिस्टम ही नहीं तैयार है. आज भी 14% महिलाएं हैं हमारे पार्लियामेंट में, कहीं भी एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन नहीं है. जहाँ पे रिजर्वेशन भी है, अगर पंचायती राज सिस्टम की बात करें तो वहां पे भी किसी की पत्नी या किसी की बेटी या किसी की बहू बन के चुनाव लड़ रही हैं. वो भी एक तरह की वहां पे भी हिंसा हो रही है अलग अलग तरीके की. पर जो बड़ा जो एक मामला आ रहा है सामने, जब हम चर्चा भी करते हैं, वो है कि जो पैसे की ताकत है उसके कारण जो हिंसा नीचे तक आती है, कि जो अच्छे लोग जाना भी चाहते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, वो ईमानदारी से काम कर ही नहीं पाते हैं. तो उसमें कैसे देखा जाए इस पूरे को. और दूसरा ये भी है कि क्योंकि जब हम इलेक्टोरल राजनीति की बात करते हैं जहाँ पे चुनाव लड़ना है, वहां पे संसाधन तो लगेंगे ही. और मेरा अपने जीवन है, मेरा अपनी आजीविका है, मेरा परिवार है, माता पिता, पत्नी या पति या बच्चे, उस पूरे को फिर कैसे देखें, तैयार कैसे करें अपने आप को. बहुत मुश्किल है. Prakhar, are you still there? Prakhar, are we still connected? Hello. I don't know if you can hear me. Did we lose the connection? Okay, I'm going to assume that we are still live, and I think Prakhar's computer is having a problem. So I will continue on the assumption that you can all hear me. See, इसका कोई आसान जवाब नहीं है जो बात प्रखर ने कही, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं हमारे बीच में, वो आर्थिक हों, सामाजिक अन्याय की हों, अन्य प्रकार की गैर बराबरी की, उनका सामना करना आसान तो नहीं है. ये 100% हम सब जानते हैं. मैं सिर्फ इतना आपसे कहना चाहती हूँ कि जब हम बहुत इसको पहाड़ के रूप में देखते हैं ना, तो वो इम्पॉसिबल लगता है. और Prakhar, I continued on the assumption that only we lost your connection, right? Should I continue?
सो अगर हम इसको एक बहुत बड़े पहाड़ के रूप में देखें तो फिर इट लुक्स अनस्केलेबल कि अरे यार कहाँ हम अब खुद को चींटी समझते हैं और जो परिस्थिति है उसको हम पहाड़ मानते हैं। और कुछ हद तक हाँ है एकदम भी। सही। हाँ कंटिन्यू, आई कैन कंटिन्यू या। लेकिन अगर आप हर परिस्थिति की जो बिल्कुल नजदीकी है, जो उसका मतलब जो आपसे बिल्कुल करीब वाली जो उसकी डायमेंशन है, उससे अगर हम जूझें और उसमें जितना भी संभव है उसको हम करें, तो वो पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। एक बच्चों के भले के लिए काम करने वाली संस्था है, आपने सुना होगा, चाइल्ड राइट्स एंड यू। उसके जो फाउंडर हैं रिपन कपूर, उनका ये मोटो था कि व्हाट आई कैन डू आई मस्ट डू। सो अगर हम खाली इस पे फोकस करें ना कि अरे प्रॉब्लम देखो यहाँ है, हिमालय की चोटी जितनी प्रॉब्लम है, अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तो फिर अब दैट इज ट्रू, आप कुछ नहीं कर सकते। बट इफ यू flip it around and you say कि look, this is what I can do in this immediate situation, and then from that of course you उसको खाली उतने पे लिमिट मत अपने आप को समझिए, then it can keep in gradations. Literally the sky is the limit. That's the only way in which I deal with it. But ये है कि some people get very depressed about what they cannot do. That is a reality, because that will always tend to be more in scale, and it will look like it has more importance than what we can do. अब जैसे प्रखर, कई लोगों ने मेरे से पूछा, अरे यार अभी यूट्यूब पे तो कितने बिलियंस ऑफ आवर्स ऑफ मटेरियल है, ये क्या आप कर रही हैं, कौन देखेगा? मैं कहा मुझे नहीं पता कौन देखेगा, बट आई कैन डू दिस, सो आई मस्ट डू इट, whether one person watches it or 1 million watch it. आई थिंक बिल्कुल सही बात है। वो छोटे छोटे कदम से ही शुरुआत होगी और वो बनते बनते, जैसा आपने बोला कि गांधी जी ने भी अफ्रीका में वो धक्के भी खाए, वो मार भी खाई, और उसके बाद बनते बनते वहां तक पहुंचे कि हजारों लाखों लोग उनके साथ चल पड़े। और ऐसा हर जगह। Sorry, can I just pause you here? I know you have a question, but this is a very important point. ये देखो, गांधी जी का जो एक, हमें मुझे लगता है अगर उनकी लाइफ का एक इंसिडेंट हमको फोकस करना है ना, तो वो ट्रेन वाला ही इंसिडेंट है। क्योंकि उसमें से मैं क्या सीख रही हूँ कि he didn't take it personally. देखो वो, it had all the ingredients of a personal trauma. He was an unsuccessful, unsure young man in a strange country, alone at night on a lonely platform. उनको lifelong psychological trauma हो सकता था, और वो पूरी जिंदगी उस trauma को झेलते रहते। How he was able to flip it around? Because I think he somehow, he of course it was a personal experience. He was the one sitting on that lonely, dark, cold railway platform through the night. But he managed through that night not to flip it around, not to take it personally. उसमें जो larger सामाजिक जो अन्याय था, उनका ध्यान उस पे फोकस हुआ, and the rest is history. So this is also a very important element, that how by linking your own, the wrong done to you, when we link it to the larger reality, we are empowered, not disempowered. Sorry, now you were saying something. आई थिंक मैं हिस्टोरिकली अगर पिछले 70 या आजादी की लड़ाई पे हम बार बार जाते हैं, और आई थिंक वो कहीं ना कहीं हमारे से बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। और जैसे हम पहले भी बात करें तो इन जनरल भी होता है, शायद उस टाइम पे मल्टीपल चीजें चल रही थी। गांधी जी की अपनी एक जर्नी थी, भगत सिंह का अलग वो चल रहा था, और भी बहुत सारे संगठन उस तरफ लगे हुए थे। लेकिन अगर ना पिछले 60-70 साल की बात करें, जब से 1947 के बाद, तब से शायद जेपी वाला जो मूवमेंट था वो एक था, जहां पे जो आपने नारा भी बताया, उसके बाद से कहीं ना कहीं
इंडिया अगेंस्ट करप्शन में थोड़ा बहुत देखने को मिला था कुछ लेवल पे, बट आज वो दिखता नहीं, बहुत अलग है, दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, उससे भी एक गांधीयन मूवमेंट की तरह। नहीं नहीं प्रखर, मेरे आपसे आई डिसएग्री विद यू. मैं शुड आई एम लूजिंग योर वॉइस प्रखर, आपकी आवाज नहीं आ रही. Shall I don't know whether you are all able to hear Prakhar. I'm not. So I will, in order to save time, because we have 5 minutes left. So my disagreement with you, Prakhar, is that actually आप ये नजरअंदाज कर रहे हैं. हाँ, आप नजरअंदाज कर रहे हैं कि कितनी मूवमेंट्स हुई हैं जिनमें नॉन वायलेंस की बहुत बड़ी भूमिका रही है. नर्मदा बचाओ आंदोलन, NAPM, नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट का पूरा नेटवर्क. और अगर आप देखें ये उल्का महाजन और साथियों का काम है सर्वहारा जन आंदोलन में. तो देर आर many such movements that are well after the JP movement. हाँ, you are right in thinking के भाई how do we deal with the fact that advocates of violent movements have meanwhile taken the center stage of Indian politics. That is there. So that is the cause for concern. But it is not true that non-violence की impact और मतलब परिस्थिति को बदलने वाली movements नहीं हुई. That's all. I just wanted to clarify that. हुई हैं और उनकी significance है. आप ठीक है, नर्मदा पे बांध बन गए, वो रुके नहीं बांध, लेकिन जितने लोगों को रिहेबिलिटेशन और कॉम्पनसेशन मिली, इट इज बिकॉज ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन. वो आंदोलन ना होता तो वो उन लोगों की उससे कहीं वर्ष हालत होती. हाँ, मैं आपसे एग्री करूंगा इस बात से, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन वाली बात करी, और उसके अलावा भी MKSS ने काम किया है. बिल्कुल. हाँ, एकता परिषद काम कर रही है, बहुत सारी संस्थाएं हैं. मेरा था कि पॉपुलर सेंटिमेंट, मेरे जैसे युवा जो, या मैं तो तभी थोड़ा एंगेज हूँ डीपली, बट बहुत सारे युवा जो आज कॉलेज में हैं, जो डॉक्टरी इंजीनियरिंग अलग अलग जगह पढ़ रहे हैं, उनको शायद NBA नहीं पता होगा, उनको शायद एकता परिषद नहीं पता होगा, लेकिन उनके लिए लार्जर मूवमेंट शायद आखिरी गांधीयन बड़ी मूवमेंट JP मूवमेंट रहा होगा. वैसा अभी नहीं हो रहा है. तो वो हम कॉन्टेक्स्ट को सीखें कैसे, कि हम सीख पाए कि वो आज भी पॉसिबल है, और आज भी हम राजनीति, वो भी इलेक्टोरल राजनीति को अहिंसा के तौर पे कर सकते हैं. उस पे अगर आपका कोई मैसेज है यंग लोगों के लिए, तो आप जरूर से शेयर करिए. I'm not so sure, Prakhar. I know that you're not having this in vacuum, but I think if you talk to people who are above 30, who were, जिनको होश था जब नर्मदा अपने पीक पे था, तो उसका बहुत पॉपुलर इम्पैक्ट था भाई. I have traveled in trains and buses with Medha Patkar, and मतलब लोग ऐसे मिलते थे जैसे फिल्म स्टार हो. I'm not saying मेधा को गाली देने वाले लोग भी आते थे. There were some people who would come and stand like this and say, "Madam, आप क्यों anti development हैं?" वो लोग भी होते थे, but they were a minority. ज्यादातर वो लोग होते थे जो उनको देख के ऐसे नमस्ते करते थे, लड़कियां उनकी ऑटोग्राफ लेती थी. तो ये भी रियलिटी है. I think there is a huge issue of how the opposite of non-violence is always seen to be more glamorous. And quick win. And quick. Do you know कि ये जो लगान picture आई थी, how did I meet Ashutosh Gowarikar? Because I read an interview with him in which he explained that for years he was sitting on that script and nobody would make it into a film because every producer he approached said, हाँ हम ये बना सकते हैं फिल्म, पर ना एंड में वो जो भुवन हीरो है उसको वो अंग्रेज को मारना पड़ेगा, वो अंग्रेज की हत्या होनी चाहिए एंड में, तब ये फिल्म ठीक बैठेगी.
And he said, look, but that's not the film I'm making. The whole point of the film is the opposite. And then Amir Khan stepped in, and the rest is history. Because it's an Amir Khan production. कोई लास्ट मैसेज युवाओं के लिए जो अहिंसा की राजनीति के रास्ते पे चलना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इसको अपने जीवन में उतारें, तो कुछ आप कहना शेयर करना चाहेंगे क्या? I will quote one of my recent guests in Ahimsa Conversations, Ganesh Devi. He's a great linguist and philosopher. उन्होंने दक्षिणायन एक एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई है हिंसा का विरोध करने के लिए. He says, dream and sing. ड्रीम से उनका मतलब ये है कि जो भी हमारे इर्द गिर्द की स्टार्क रियलिटी है उसको फुल एंड फाइनल मत मानिए. There is always more to reality than is obvious. तो obvious में उलझे मत रहिए और obvious के limitations में हेलो 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 सॉरी, अगर आप लोग देख पा रहे हैं हमें, तो आज थोड़ा इंटरनेट से हमें काफी समस्या हुई है. हाँ, आप वापस आ गई दीदी. या आप म्यूट हैं अभी. Can I just quickly quote this? Yes. So anyway, there is a civil statement on violence. That was put together by UNESCO. They brought together a whole range of experts. The nutshell of that statement is, just as wars begin in the minds of men, peace also begins in our mind. The same species who invented war is capable of inventing peace. The responsibility lies with us, because it is now proven that we are not genetically programmed to be violent. We are as much capable of non-violence, if not more. So with that kind of confidence, कौन सी यार कोई एवरेस्ट नहीं है जो बहुत ऊंची है. थैंक यू सो मच फॉर दिस. जो लोग देख रहे हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आज थोड़ा इंटरनेट का चैलेंज हुआ. मेरे मोबाइल में भी नेटवर्क उतना अच्छा नहीं आ रहा है, तो हॉटस्पॉट से भी नहीं हो पाया. शायद दीदी का भी नेटवर्क बीच में गया. I switched to my phone then in between. मैंने भी किया, बट वो कुछ गड़बड़ हुआ. बट आई थिंक बहुत ही शानदार कॉन्वर्सेशन. मैं वापस से इसको और से सुनूंगा. मैंने कुछ नोट्स भी लिए बात करते करते. एक मेरे साथ जो रहेगा वो है बायोलॉजी एंड एथिक्स आर क्लोजली कनेक्टेड. आई थिंक वो मेरे साथ रहेगा. और भी कई सारी चीजें थी. रजनी दी हमारे साथ, जो हमारा द गुड पॉलिटिशियन प्रोग्राम है, जिसके एप्लीकेशन लाइव है, जो पॉलिटिकल वर्कर के लिए है. 14 फरवरी उसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन की. हमारी गेस्ट फैकल्टी भी हैं, और मुझे पूरा आई थिंक मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ. जो हमारा रेजिडेंशियल होगा, आप जो हमारे साथ 1-2 दिन रहेंगी आके, और जो खाने पे चर्चा होगी, जो वॉक पे चर्चा होगी, I look forward to that too. मैं भी उसकी इंतजार में हूँ. और हमारा एक दूसरा पड़ाव जो रेजिडेंशियल का है वो मुंबई है. तो वहां से शायद लातूर जाएंगे हम. तो शायद उस ट्रेन जर्नी, और होपफुली तब तक वैक्सीन और कोरोना का डर भी कम हो जाएगा. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दोज इंटीमेट कॉन्वर्सेशंस, एंड आई थिंक वो एनलाइटनिंग कॉन्वर्सेशंस जो होंगी. तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर व्यूइंग. हम इसका अपलोड करके अपने यूट्यूब चैनल में भी डाल देंगे, और मैम आपसे भी शेयर करेंगे इसको. Thank you so much for joining us today. No, thank you for inviting me, and all the best to all of you. Thank you so much. आप लोगों की हिम्मत से ही हम लोगों की जो है ना हौसले बने रहते हैं. धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया. मिलते हैं फिर जल्दी से. Okay. Bye.